میں ہوں علینا فاروق شیخ. جناب 27 فروری 2019 آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے بھارت کے لڑاکا طیارہ مار گرائے اور پاکستان نے اپنی دفاعی اسٹریٹجی یوز کرتے ہوئے بھارت کو بڑا اچھا جواب دیا اور پاکستان کی فتح کہا جا رہا تھا اور بہت ہی ذمہ دارانہ پاکستان نے قدم اٹھایا جس کو پوری دنیا میں پذیرائی بھی مل رہی تھی کہ جو زخمی ہوا اس ڈاگ فائٹ طیاروں کی ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں پائلٹ اس کو پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت جنیوا کنونشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے حوالے کر دیا. اب یہ جو پاکستان کا ایک طرح سے اسٹرانگ فٹ پہ پاکستان کھیل رہا تھا, کل اس کی بازگشت ہوئی قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن کے کچھ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب اور ایاز صادق صاحب جنہوں نے اس معاملے کو اٹھایا اور ایاز صادق صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ سویلین حکومت کی کمزوری ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی پائلٹ کو واپس جانے دیں, شاہ محمود قریشی نے کہا, ورنہ بھارت ہم پہ حملہ کر دے گا. اب یہ جو بیان اٹھا اس کے اوپر دونوں جانب سے تنقید ہوئی اور اس کے بعد ایک ہنگامہ بپا ہو گیا اور انڈین میڈیا نے اس کو اٹھایا اور وہ بھارتی میڈیا جس کو اس معاملے پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس نے اس کو پروپیگنڈے کے طور پر پیش کیا اور اپنی جیت کے طور پر اس کو پروپیگیٹ کیا. اب اس سارے معاملے کے اوپر آج ڈی جی ISPR صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی ان کو کرنی پڑی, 1 پوائنٹ اس کا ایجنڈا, اور انہوں نے کہا جی ریاست کا یہ قدم تھا اور اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے یہ جو قدم اٹھایا ہے. اب اپنے اینالسٹ سے آج ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کو ایاز صادق کے بیان کو واپس لینا اور اس کی وضاحت دینی چاہیے, ہاں یا نہیں, کے آپشن سے ہمارے اینالسٹ کے پاس پینل پر ہمارے ساتھ دے رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, بابر ستار صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, شہزاد اقبال صاحب, ریما عمر صاحبہ اور محمد سرفراز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, گفتگو کا آپ سے آغاز کرتے ہیں. گو کہ ڈی جی ISPR نے بڑے واضح الفاظ میں سارا معاملہ کلیئر کیا ہے, ایاز صادق صاحب کی اس کے اوپر وضاحت آئی ہے کل کے بیان کے اوپر, وہ کہتے ہیں میرا اشارہ سول لیڈرشپ کی کمزوری کی جانب تھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ ڈی جی ISPR کی ہی اکیلے کی ذمہ داری ہے؟ کیا جب معاملہ بھارت کا ہو یا معاملہ دشمن کا ہو یا معاملہ اپنی عزت کا ہو یا معاملہ اپنی سرحدوں کا ہو یا معاملہ دشمن کی جارحیت کا ہو, تو کون ہے جو دوسری طرف کھڑا ہوگا؟ کیا ہر مرتبہ ڈی جی ISPR کو آ کر گند صاف کرنا پڑے گا؟ کیا ہر مرتبہ ایک چول اور ایک بونگی کی کلیریفیکیشن یا وضاحت ڈی جی ISPR کو دینی پڑے گی؟ یہ کیا مزاحیہ پروگرام چلا رہے ہیں یہ جو سو کالڈ قسم کے, یہ ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو آپ نے اپنا سب کچھ سونپ رکھا ہے؟ یعنی کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ راول گاندھی نے اروند کیجریوال نے کہا ہو کہ مودی جی آپ تو بالا کوٹ میں گئے تھے, ایک کوا مار کے آ گئے, چند درخت زخمی کر دیے, چند کچے گھر زخمی کر دیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 300 دہشت گردوں کو مار دیا؟ جو سرجیکل سٹرائکس تھی جو وہ اس کے حوالے سے جو جعلی پروپیگنڈا تھا بھارت پر, اس کا کوئی وہاں کا ایاز صادق بڑھ چڑھ کے بولا ہو کہ گھٹنے ٹیک دیے؟ پلوامہ کا جو ہم پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اس پر بھارت کا بولا ہو؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے شیلو لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ابھی نندن نے جاتے ہوئے ان کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں کی بھائی ایاز صادق فلاں فلاں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میں ان کانپتی ٹانگوں میں سے نکل آیا ہوں؟ یہ اور آج کل کوئی ابھی نندن کی رہائی کی سالگرہ والا دن تھا کہ ان کو اس پر بات کرنی چاہیے تھی. کیا وہ ان 2 پائلٹس کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے بہادری کا مظاہرے کیے اور ان کو اریسٹ کیا؟ اب کہہ دیں کہ F-16 طیارہ بھی ہمارا گرا تھا, اب کہہ دیں کہ ہمارے پاس تو ایٹمی صلاحیت بھی کوئی نہیں, ہم نے تو ویسے گجرانوالہ کے پٹاخے چھپائے ہوئے ہیں چند پہاڑوں میں, کہہ دیں کہ وہ بھی باقی سب بھی جھوٹ ہے. کیا کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ بالکل یہ ایک بہت بڑا دن تھا جس کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی اور بیان واپس لینا چاہیے. دوسری بات یہ, دوسری جو اس پہ آگے رد عمل ہے وہ بھی عجیب سا ہے, ہمارا سارا عجیب و غریب رد عمل ہے. مودی کی پاگ پہننے والا غدار, مودی کا یار غدار, کلبھوشن کا ذکر نہ کرنے والا غدار, ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانے والا غدار, فوج کو مجرم بنانے والا غدار, سی پیک کو برا کہنے والا غدار, اردو زبان کو رد کرنے والا غدار, افغان بارڈر اکھاڑ پھینکنے والا غدار, مزار قائد کی بے حرمتی کرنے والا غدار, کشمیر کا سودا کرنے والا غدار, ابھی نندر پر کمزوری دکھانے والا غدار,
मतलब इमरान खान भी गद्दार, मतलब 11 जमाती जो इलेक्शन वो अपोजिशन के सारे लोग हैं वो भी गद्दार। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया है? क्या बाकी रह गया है? कौन बाकी रह गया है? कह दें डॉक्टर एक्यू खान भी गद्दार, कह दें कायदे आजम भी गद्दार, कह दें इलामा इकबाल भी गद्दार, कह दें ये 24 करोड़ लोग भी गद्दार। क्यों कर रहे हो ये? किस लिए कर रहे हो ये? किसके कहने पर कर रहे हो ये? किसकी साजिश है ये? क्यों लड़ रहे हो आपस में इन फजूल बातों पर? क्यों एक दूसरे के कमीजें उठा उठा के कर रहे हो? भारतीय मीडिया की रोज ईदें हो रही हैं, आप रोज चवल मारते हैं, रोज बोंगियां मारते हैं, और वो इस चवल और इस बोंगी पर अपने एक महल खड़ा करके रोज आपकी बेइज्जतियां करते हैं। सब रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं, सब रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। जब अब आखिरी बात ये, लकड़ियां भी मौजूद हैं, उन पर तेल भी डला हुआ है, माचिसें भी सारा कुछ है, आग लगा दें इसको, और ताकि ठंड फिर वो आग बैठकर आराम से सारे सीखें। न्याजी साहब बड़े वैलिड क्वेश्चंस भट्टी साहब ने जो उठाए हैं, पूछते हैं क्यों आप लड़े हैं आपस में, क्यों गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं, और फिर जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, अयाज सादिक साहब एक जिम्मेदार पोजीशन पे रह चुके, फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आने से क्या कौमी सलामती के मामलात और सियासी मामलात हमें फ़र्क अलग-अलग करने की ज़रूरत है सियासतदानों को भी? अगर क्वेश्चन वैलिड है और मैं एंडोर्स कर दूं तो मुझे तो मेरा नहीं ख्याल कुछ कहने की ज़रूरत है। फिर देखिए, बात यह है कि भट्टी साहब ने माशाल्लाह खासी तफसील बताई है और उन्होंने तस्वीर के दोनों रुख पेश कर दिए हैं। जो क्राइसिस है वो ये है कि आप पिछले 3.5-4 साल एक बंदे के ऊपर कह रहे हैं कि मोदी का यार है, और हर उस मौके पे उसके जो कोई ऐसा मौका नहीं आता जो जिसके लिए उसको बिलिटल करने के लिए और एक हमागी मीडिया कैंपेन चलती है, और पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है इस बयानिए को का चर्चा कर रहा है और इसको आम कर रहा है। तो पहली बात यह है कि याद सादिक साहब ने उसका वजाहत दे दी है। मैं थोड़ा सा भट्टी साहब को बता दूं कि वहाँ पे असेंबली के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है उसका मजाक उड़ाया गया है, और कांग्रेस ने भी उड़ाया है और बहुत सारे दूसरे लीडर्स ने भी उड़ाया है। वहाँ पे मोदी को इन बातों पे बड़ा बिलिटल किया गया है। मोदी को कहा गया है कि आपको बहुत जगह पे पाकिस्तान से हजीमत उठानी पड़ी है, चुनाचे ये बात तो वहाँ नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें करनी चाहिए। देखिए जी, तंग आमद बजांग आमद। अब आप एक वाक्य होता था बड़ा, और वहाँ पे ब्रीफिंग हो रही है सारी की सारी, वज़ीर आज़म ने देनी है, और ये पहला मौका नहीं है, ये ना ये पहला मौका था ना ये आखिरी मौका था कि वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने एक ख़ास पोजीशन ली है, और उस पोजीशन के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि जहाँ पे कहीं पे लगता है कि जी कहीं पे लोग इकट्ठे मिल बैठ सकते हैं और उसके अंदर ये तासुर फैल सकता है कि किसी एक चीज़ पे ये मुतफिक है, वज़ीर आज़म मेक्स इट अ पॉइंट कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। APS का वाक़ा हुआ था तो धरने पे ये मौजूद थे, मौसूफ का धरना छुड़वाने के लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा हमारे साथ एक तकलीफ दिया, मिसानियाँ दिया, जिससे इनकी धरने से जान छूटी। तो नवाज शरीफ साहब ये सारे लोग जो हैं इक्वल हो गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जाके बैठे, और वहाँ पे आके बैठ के उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आपने 6 महीने वज़ीर आज़म हाउस पे हमला कर दिया था, आपने PTV हमला कर दिया था, आपने पार्लियामेंट में हमला कर दिया था, आपने सुप्रीम कोर्ट को धोबी घाट बनाए रखा था। तो चुनाचे इशू ये था कि जब भी कौमी इशू आए हैं तो वज़ीर आज़म को खुद आना चाहिए था। फिर याद सादिक साहब ने बड़ा तफसीली वजाती बयान दिया है, और जो कोई वजाहत देता है तो हमें फिर उसकी पीछे विच हंटिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने बयान दिया है कि मेरा बिल्कुल कतई नौ सबाके को मिलिटेट करना था, मेरा तो एक सियासी नैरेटिव था, और ये उतना ही था जो मैंने असेंबली में कहा है। और अब वज़ारत ने कहा है कि मैं दोबारा कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज आए तो उन्होंने ये आके फरमाया कि जनाब ये इंडिया हमला करने वाला है, हमें ये बात का जो है जिसको कहना चाहिए कि जो है उनको रिहा कर देना चाहिए। चुनाचे जब उन्होंने कहा उसी असेंबली में जब मोदी का यार उसी वक्त मुराद शहीद लगे हुए थे। जब आप किसी के ऊपर वो कहते हैं ना कि इतना ज्यादा पुश करते हैं और तो किसी तरह खेलते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने वही कुछ कह दिया जो उन्होंने फरमा दिया। शहजाद इकबाल साहब, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? क्या इस नहज तक धकेला गया है अयाज सादिक साहब को कि वो इस तरह का जारहाना बयान दे जो कि आगे कौमी सलामती पर और एक हमारी फतह के ऊपर जो बड़ी अच्छी हमारी विक्ट्री तस्वर की जाती है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दे? कि अब जो वजाहत आई है वो काफ़ी है?
देखिए, दो तीन बातें कहूँगा। एक तो यकीनन जब पीटीआई अपोजिशन में थी, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के बयानात दिए, गद्दारी के फतवों के करीब करीब, अगर गद्दारी नहीं तो गद्दारी के फतवों के करीब करीब दिए, मोदी का याद जैसी बात जो है, इस तरह की बातें की गई। लेकिन थोड़ा सा तारीख हम जल्दी भूल जाते हैं। मोदी का यार जो है ना, ये टर्म जहाँ तक मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। जब इलेक्शंस हो रहे थे, मोदी के यार को एक धक्का और दो, तो वहां पर तो याद सादिक ने अपना गुस्सा नहीं निकाला, क्योंकि इस वक्त वो एक इत्तेहाद में है। देखिए, मसला ये कि जब सियासी इख्तलाफात बहुत बढ़ जाते हैं और जब ये सियासतदान आपस में तमाम अपना कारतूस, सियासी कारतूस खत्म कर चुके होते हैं ना, फिर ये बड़े बड़े मजाइल निकालते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और वो क्या होता है? वो ये होता है कि एक दूसरे के खिलाफ ये साबित करना कि मैं ज्यादा अच्छा मुसलमान हूं, तुम कमतर मुसलमान हो, मैं बड़ा आशिक रसूल हूं, तुम छोटे आशिक रसूल हो, मैं मुहिब वतन हूं, तुम गद्दारे वतन हो। फिर ये असला निकलता है, फिर ये एक दूसरे पे इस्तेमाल होता है। और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी तारीख में होता रहा है, 90 की दिहाई में होता रहा। फिर हमने देखा कि अब जब ये पीटीआई का अरूज हुआ तो पीटीआई की तरफ से होता रहा। फिर हम समझे कि शायद एक मैच्योर ऑपोजिशन आई है तो अभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप कुलभूषण यादव का केस देख लें, जब वो ऑर्डिनेंस आया तब भी यही कहा गया, और बिलावल की जानिब से कहा गया, बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि ये कुलभूषण यादव के वकील हैं, गद्दारी के फतवे दिए गए। चाहे वो अभिनंदन का वाकया हो, उस पर भी यही रहा, और कश्मीर के ऊपर भी यही नैरेटिव था कि ये सौदा कर दिया कश्मीर का। तो जो एक मैच्योर पार्टीज थी, जब वो ऑपोजिशन में आई तो उन्होंने बिल्कुल वही काम किया जो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में रह के करती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसको जब मौका मिलता है, जब जो अपने आप को सियासी तौर पे कमजोर फील करता है, तो वो इसी तरीके से अटैक करता है। और इसमें तमाम जमातें उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो मजहब का भी इस्तेमाल करती हैं, पेट्रियोटिज्म का भी इस्तेमाल करती हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ये जो मैंने आपको वाकयात बताई ऑन द रिकॉर्ड है, और इस पे मुझे याद है अभी कुछ अर्से पहले नफीसा शाह साहबा का मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे यही गुजारिश की तमाम पार्टीज के शॉट्स दिखाए कि कम से कम इससे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए कि दूसरों के ऊपर गद्दारी के फतवे ना लगाए। मुहिब वतन कौन मुहिब वतन है, इस पर शक ना किया जाए, हुब्बुल वतनी पे शक ना किया जाए। आई वाज शॉक्ड टू नो कि पीपल्स पार्टी जैसी लिबरल पार्टी की रहनुमा आकर कह रही है कि नहीं, हम तो शक करेंगे इमरान खान की मुहिब वतनी पे, उनकी हुब्बुल वतनी पे शक करेंगे, वो मुहिब वतन है यानी हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब जब सियासतदान आकर खुद इस बात को डिफेंड भी करने लगे, फिर वो दूसरी पार्टीज को कैसे कहेंगे कि आप ये बातें ना करें? ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल ले लें। उस दिन जियो पर बैठ के वो कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, गद्दारी के फतवे नहीं लगने चाहिए। मेरे वालिद साहब पर भी लगे थे। और भाई, जिस चैनल पे आप बैठ के बयान दे रहे थे, उस चैनल को आपने गद्दार डिक्लेयर किया था, आपने सजा सुनाई थी, आपने डिफेंड किया था, यू वर द डिफेंस मिनिस्टर। तो आपको उस वक्त याद नहीं आता, क्योंकि उस वक्त आपने वो काम करना होता है। उस वक्त आपको याद नहीं आता कि बिला वजह किसी पे गद्दारी के फतवे ना लगाए, वो लगाए गए। अब ये अयाज सादिक साहब बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, और बड़े हमेशा हमने देखा है डिसेंट तरीके से वो आते हैं, बात करते हैं। आई थिंक बड़ा नीडलेस था, कोई जरूरत नहीं थी ऐसा बयान देने की। हमें पता है कि पुलवामा के बाद जब इंडिया ने अटैक किया, हमने जवाब दिया, उसमें इंडिया की सुबकी हुई है, पाकिस्तान की उसमें वाज़ेह एक बढ़तरी हासिल थी। हमने वो फैसला पोजीशन ऑफ वीकनेस में नहीं लिया था, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने फैसला लिया था। आप इस बात पर बहस करें, बेशक सियासत में इस बात पर बहस करें कि क्या उस वक्त हमें एक पॉजिटिव जेस्चर देने की जरूरत थी, क्या हमें एक अमन का मौका और देने की जरूरत थी इंडिया को, या नहीं देने की जरूरत थी, क्योंकि इंडिया एग्रेसर था, हमने जवाब दिया था। इस बात पे आप बहस कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि एक तो इंडियन मीडिया पे तो उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है कि बयान उन्होंने शायद आर्मी चीफ के बारे में दिया। लेकिन अलीना एक जुमला, अगर उन्होंने ये बयान सियासी मुखालफत में फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ भी दिया तो भी नहीं देना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। कल आज शाह महमूद है, कल को कोई और होगा। आप ये कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी, उनके पसीने छूट रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जरूरी था। खामोखा का एक तमाशा बनता है। क्लैरिफिकेशन आज आ गई है, अब इस पे भी मेरे ख्याल से जो उनकी वजाहत थी, खैर वजाहत तो वो क्या वजाहत है, वो भी मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं कि आपको लगता है ये वजाहत काबिल कबूल है, या नून लीग की तरफ से बाकायदा एक कोई कैटेगरी के लिए आनी चाहिए? देखें, चाहे वो देते हैं, वो ये कम से कम तस्लीम कर ले कि गलत बयान था। सियासत में हमें इस हद तक आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम सियासी मुखालफत में ऐसे बयान दें जो कि बतौर स्टेट आपके खिलाफ जाते हैं। उनकी अब जो वजाहत है उसको अब तस्लीम करें या ना करें, अब ये भी नहीं होना चाहिए कि उनकी वजाहत के जवाब में, उनके स्टेटमेंट के जवाब में आप उनको गद्दार कहने लगे, मुल्क दुश्मन कहने लगे। भाई, नेशनल असेंबली के स्पीकर रहे, यही पाकिस्तान में मुंतखब होते हैं, अवाम मुंतखब करती है। गलत बयान को गलत तरीके से ही देखें, उनके ऊपर उल्टा गद्दारी के फतवे ना लगाना शुरू कर दें, जो इस वक्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मेरे ख्याल से कुछ वज़राओं की भी स्टेटमेंट आए, गलत बयान है, उनको वापस लेना चाहिए, माजरत करनी चाहिए कि इस तरह का बयान मैंने दिया, जो भी गलत है। लेकिन अब ये कम से कम सिलसिला रुक जाना चाहिए।
اچھا ہم واپس اس سوال کے اوپر آتے ہیں اور ذرا یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس کا کیا آگے حل ہو سکتا ہے. بابر ستار صاحب پہلے آپ کا کامنٹ چاہوں گی. اب جو وضاحت آئی ہے اور ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا کچھ اور مطلب تھا, جیسے شہزاد صاحب نے بھی ابھی کہا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ فیئر کہ آپ اس طرح کے معاملات, خاص کر کلبھوشن ابھینندن کا معاملہ, اس کے اوپر سیاسی بیان, پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیانات دے دیں, یا پھر قومی سلامتی کو واضح طور پر آپ کو ذرا سوچنا سمجھنا اور الگ کرنا چاہیے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اٹ از فیئر. دیکھیے انفارچونیٹلی ہم پارٹیزن شپ میں, سیاست میں, پولرائزیشن میں اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ صحیح غلط, موقع محل, اس کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو وضاحت تھی وہ کیا وضاحت ہے. وہی بات کی. اچھا, مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ انڈین میڈیا اسے کیسے پلے کر رہا ہے, کیونکہ انڈین میڈیا تو جب یہ واقعات ہو رہے تھے اس وقت بھی ہر طرح کی من گھڑت سٹوری وہاں پہ پیش کر رہا تھا. وہ ظاہر انڈینز کی کنزمپشن کے لیے تھی, اس سے پاکستان کو کیا لگے. وہ تو ہر طرح کا کلیم کر رہی تھی انڈین گورنمنٹ, اور میڈیا وہی بات کر رہا تھا وہاں پہ. میرا خیال ہے یہ چیز کم ریلیونٹ ہے. زیادہ چیز ریلیونٹ یہ ہے کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی آتی ہے اور دو ملکوں کی بات آتی ہے, تو کیا آپ نیشنل کنسنسس ایوالو کرنے میں مدد دیں گے یا آپ اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی چیز ریلیونٹ ہے کہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو وہ کیا بات کر رہی تھی. دیکھیے یہاں پہ اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس رہا ہے اور کچھ عرصے سے ڈیولپ ہوا ہے, یہ پچھلے 15, 20, 30 سالوں سے, کہ ہمیں اس خطے میں جنگ نہیں کرنی. سو ایاز صادق صاحب کا جو لارجر نیریٹو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیریٹو یہ ہے کہ اگر اس وقت جنگ کا خطرہ تھا اور اس سٹیج کے اوپر آپ نے ایسے فیصلے کیے کہ اس ملک کے لیے ایک نیوکلیئر پاور ملک اور ایک ریجن جس میں دو ملک نیوکلیئر پاورز ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس سے پہلے جنگیں لڑتے رہے ہیں, اور اگر اب جنگ ہوئی تو وہ کنونشنل وار نہیں ہوگی, اس میں آپ کو کس حد تک جا کے جنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. یہ ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہے, اور اس کے اندر آپ اگر تمسخر اڑائیں اس گورنمنٹ کا, کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ سویلین گورنمنٹ کا تو نہیں تھا اور ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس میں آپ کی فوج شامل ہوتی ہے, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو وہ دیکھتی ہے, اور سویلین گورنمنٹ بھلے جو مرضی ہو وہ ایک طرح کے اسپوکس پرسن کا کام کرتی ہے, کنسنسس بلڈنگ کا کام کرتی ہے. لیکن اس میں آپ اس طرح کی ہاکش باتیں کریں کہ کل کو دوبارہ سے حالات خراب ہوں تو اتنی پالیسی اسپیس ہی نہ ہو گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کوئی بات کر سکے اس پہ. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ سے زیادہ ایک ڈینجرس کام ہے. ایک ڈینجرس کام ہے کہ آپ ملک کے اندر ایسی ریڈیکلائزیشن کریٹ کریں کہ کل کو گورنمنٹ یہ مجبور اپنے آپ کو سمجھے کہ اب ہم نے جنگ کی طرف آگے چلنا ہے. یعنی اس سے زیادہ آپ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے ایک ملک میں, اور تھینکفلی سول ملٹری کنسنسس ہے کہ یہاں پہ دوبارہ سے جنگ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا, آپ کے اوپر کسی نے اٹیک کیا, آپ نے جواب دے دیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنی ذمہ داری کا بھی ثبوت دیا. آپ اسے اب پیش کر سکتے ہیں کمزوری کے طور پہ یا آپ اسے سمجھداری کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. تو ایک پولیٹیکل پارٹی جب گورنمنٹ میں تھی اور وہ خود یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں, جو اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ اس کا مذاق اڑائیں, یہ انتہائی ڈینجرس بات ہے. لیکن اب اسے واپس کیسے لے سکتے ہیں یہ میری سمجھ آ رہا ہے. یہ ضروری ہے کہ اس میں سینئر لیڈرز جو ہیں, شہباز شریف, نواز شریف, وہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لیں کہ اگر یہ بیان آیا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اور اس میں ہمارا وہی موقع ہے کہ اس ریجن میں پیس رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کلبھوشن کے معاملے پر جو متضاد بیانات آ رہے ہیں, اور پھر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کی وضاحت کرنی پڑی. قانونی نقطہ نظر کیا ہے اس معاملے پر وہ بھی تھوڑا جانیں گے, اور آگے کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. کل جو قومی اسمبلی میں ہوا اس کے بعد ریاکشنز آئے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج وضاحت آئی, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. سوال ہمارا کچھ یوں ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کو ایاز صادق کے بیان کو واپس لینا چاہیے اور اس کی وضاحت دینی چاہیے؟ ہم اپنے اینالسٹ سے یہی سوال کر رہے ہیں. محمل سرفراز صاحبہ, آپ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا سمجھتی ہیں جس طرح سے یہ پورا نیریٹو کھیلا جا رہا ہے, ادھر سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی غداری کے بیانات آتے ہیں اور کویسچن کیا جاتا ہے حکومتی پالیسیز کو, ریاستی پالیسیز کو, اور دوسری جانب حکومت کی طرف سے بھی یہ نیریٹو آتے ہیں. یہ سلسلہ رکے گا کہاں پر؟ دیکھیے علینا, یہ بڑا ایک خطرناک اور خوفناک سلسلہ ہے. ابھی باقی سارے کالیگز نے بھی جس طرح سے بات کی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایک یہ ہمارا پیس جسچر تھا کہ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا جبکہ بھارت اگریسر تھا,
भारत जो था, जिंगोइज्म सारा जो था वो इंडिया की तरफ से था, एग्रेशन उनकी तरफ से था। उसके बावजूद हमने एक इतना अच्छा एक पीस जेस्चर किया, जिसके बाद जो है एक डिप्लोमेटिकली भी पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ आई कि पाकिस्तान जो है उसने बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, भारत है जिसने। तो हमने एक डिप्लोमेटिकली भी, बल्कि आप अगर उस वक्त का इंडियन मीडिया उठा कर देख लें, आप उनकी ट्वीट्स उठा के देख लें, आप स्टोरीज देख लें, तो उन सबको भी इस चीज़ की इतनी हैरानगी थी कि अब वो क्या करें, क्योंकि एक तरफ हमने उनके त्यारे मार गिराए और दूसरी तरफ हमने ये भी एक हमारा एक अपर हैंड और एक वो चीज़ थी कि जब हमने अभिनंदन को वापस किया। और मैं अयाज सादिक साहब को याद कराती चलूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी 99 के अंदर एक पायलट को वापस किया था, भारतीय पायलट को। तो ये कहना कि इनको नहीं देना चाहिए था या कोई ये इस तरह की कोई वीकनेस की बात है, इसमें क्या वीकनेस है? ये तो वाकई वो शहजाद ने भी बिल्कुल बात सही की कि ये हमने तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की उससे हमने फिर भी ये काम किया। तो मेरे ख्याल में कि ये जो बयान इस हद तक, जैसा बाबर ने भी बात की कि हम क्या चाहते हैं कि दो न्यूक्लियर कुव्वतों के दरमियान का जंग हो जाए और इस तरह की जंग हो, तो मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी बयान था। और दूसरी तरफ लेकिन जो बात आप कर रही हैं वो बिल्कुल कि जी ये जो नैरेटिव बन रहा है, ये उन्होंने इन रिस्पॉन्स टू भट्टी साहब ने भी बताया कि ये मुराद सईद की जो बात थी, उन्होंने जो उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने इस तरह का बयान दिया। अब ये किस किस्म का नैरेटिव है कि वो कुलभूषण की बात करें, वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वो भी जो चीज़ है। फिर दूसरी तरफ ये है कि अगर ये भी कोई इस तरह की बात करें, ये भी उसके अंदर उस जुमरे में एक तरह से आ जाता है। तो ये बड़ा ही एक खतरनाक है। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा कि अगर सारी सियासी जमातें, क्या सारे सियासतदान, वो बेशक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स हों और वो बेशक ये इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हो, क्या ये सब गद्दार हैं? ये बंद कर दें, बस कर दे इस चीज़ को। मेरे ख्याल में ये हमें, अभी आप देखिए कि रजा रबानी साहब ने एक ऑर्डिनेंस के ऊपर सवाल उठाया, तो शिबली फराज साहब, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि उन्होंने आगे से उस चीज़ को भी मुल्क दुश्मनी कह दी। तो सवाल करना भी क्या अब अलाउड नहीं है? तो ये इस तरह से हमारे सियासतदानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इससे कौमी सलामती जो है ना वो खतरे में पड़ती है, क्योंकि आप लोग नैरेटिव इतना पोलराइज और इतना खतरनाक बना रहे हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, ये बड़े डेंजरस जगह पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमें ये नहीं करना, पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये नहीं करना चाहिए। मैं आगे जाकर जरा शहजाद साहब से उठाऊंगी भी सवाल, लेकिन पहले रीमा साहिबा थोड़ी सी हमें इसके ऊपर कानूनी नुक्ता नज़र से वजाहत कीजिएगा। कुलभूषण के मामले में कहा गया कल कि जी फैसिलिटेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अभिनंदन के मामले में कहा गया कि कमज़ोरी दिखाई है, मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकता था। अगर ना भी करते, क्या कोई कानूनी ऑप्शन था दूसरा? जी शुक्रिया अलीना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है यही अहम बात है। सबसे ज़्यादा भारतीय मीडिया किस तरह कवर करता है इन इशूज़ को, जिंगोइज्म में लोग क्या अपने इमोशंस में क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा है कि हमारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत क्या जिम्मेदारी थी। अब अभिनंदन जो थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे। जब एक्टिव हॉस्टिलिटीज दोनों ममालिक के दरमियान ख़त्म हुई तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें वापस भेजें। तो पाकिस्तान ने अपनी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किया और उनको वापस भेजा। पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया गया, पाकिस्तान को बहुत सराहा गया और मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। कुलभूषण जाधव के टाइम पे अगर जब उनको डिटेन किया गया तभी कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया जाता वियना कन्वेंशन के अंदर, तो फिर वो जो पूरा केस आईसीजे में चला वो ना चलता और जो अभी सिचुएशन है उसी तरह की होती। हमारी ही अदालतों ने उन्हें ट्राई करना था और कन्विक्ट करना था, सिर्फ कॉन्सुलर एक्सेस की बात ही दे देना चाहिए था। खैर नहीं दिया, आईसीजे का फैसला आ गया। अब उसके तहत पाकिस्तान पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो उसने पूरी करनी है और जो ऑर्डिनेंस है कुछ हद तक वो ऑब्लिगेशंस पूरी करता है। इस पे भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ऑपोजिशन क्यों कह रही है कि कुलभूषण जाधव को फैसिलिटेट किया जा रहा है, एनआरओ दिया जा रहा है। अब उस ऑर्डिनेंस में हो क्या रहा है कि आप उन्हें एक रिव्यू का हक दे रहे हो। अब ऑपोजिशन फेयर ट्रायल की बात करती है, उनका पूरा बयानिया इस पे जुड़ा है कि ट्रायल जो है वो अच्छी तरह होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। अब अगर कुलभूषण जाधव को इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका रिव्यू पिटिशन सुन लेती है तो इसमें एनआरओ क्या है? हमारी अदालत है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फैक्ट पे ही और कानून पे ही उन्होंने फैसला करना है, तो इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया मुझे नहीं समझ आती। तो ये बहुत अहम सवाल है कि जब आप लेकिन अलीना जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी, नून लीग जो है उनके टाइम पे ये केस आया, हमने इसी तरह की बातें उनसे भी सुनी और वही बात बहुत ही एक माचोइस्टिक नैरेटिव कि पाकिस्तान जो है उसकी खुद मुख्तार एक रियासत है, सॉवरेन स्टेट है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन का हमें क्या
हमें क्या परवाह। हमें क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इस पे भी एक कंसेंसस की जरूरत है कि जब बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जिम्मेदारी की बात आती है तो ये एक रियासत की बात है, चाहे आप ऑपोजिशन में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो, आपने वो जिम्मेदारियां पूरी करनी है, पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये लीना, मुझे अब लॉजिकल अगर हम कंक्लूजन पे लेके जाएं तो जो नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का या कि भारत की वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आपका जो एक दुश्मन मुल्क है उसके एजेंडे पे काम कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? बहुत खौफनाक ये भी नैरेटिव है अगर आप इसको अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं। लेकिन क्या इस पे हम सुनेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब इस पे माफी मांगेंगे या वजाहत करेंगे? क्योंकि हर रोज हम तो इस बार बिल कर रही है हुकूमत इस बयानी को, वो उसको कोई क्लैरिफाई नहीं कर रही। तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा यही पॉइंट आगे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और उनको पार्टी को वजाहत करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमारा ये जो हर एक को गद्दार कहना और ये ट्रेंड भी खत्म होना चाहिए। सॉरी अलीना, एक आखिरी बात, सॉरी, इंडियन मीडिया के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया था, उसको भी इंडियन मीडिया जिस तरह से उसको ले रहा है ना, वो भी बहुत सेंसेशनलिस्ट अब बना रहे हैं उसको, कह रहे हैं कि पाकिस्तान पुलवामा अटैक जो उसको ओन कर रहा है। तो भारत का मीडिया क्या कहता है, वो उनकी अपना एजेंडा है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उससे अब हमें वो हमारा बेसिस या फाउंडेशन नहीं बननी चाहिए कि हम किसको गद्दार समझते हैं या पेट्रियाटिक समझते हैं पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा शहजाद साहब, एक तो बड़े समझदार सियासतदान हैं, बड़े ज़िम्मेदार सियासतदान हैं अयाज सादिक साहब, उनकी तरफ से इस वक्त ये बयान आना, पहले नवाज शरीफ साहब का बयान, फिर ये, क्या समझते हैं इस सारी एपिसोड से? क्या ये एक नादान सी जोश खिताबत में बात हो गई या फिर कुछ सबक सीखना चाहिए हमारे सियासतदानों को आगे के लिए? ये कहाँ सिलसिला जाके रुकेगा? बिल्कुल, अयाज सादिक साहब को सोचना चाहिए कि जो बयान दिया है वो क्यों दिया है उन्होंने। अगर शाह महमूद कुरैशी की जगह ख्वाजा आसिफ साहब फॉरेन मिनिस्टर होते तो वो क्या करते? वो अर्तुगरुल की तरह अपने घोड़े पे चढ़ते, तलवार निकालते और फिर क्या चढ़ दौड़ते इंडिया पे, और सारी जो पार्टी वो चढ़ दौड़ती उन पे। ये तो नहीं करते ना। जो बाबर सत्तार साहब ने की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, दोनों मुल्कों में एक लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, पाकिस्तान ने कवानीन के मुताबिक फिर जो है अभिनंदन को वापस कर दिया, जिसको हमने पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया, दुनिया भर में अप्रिशिएट किया। कि अगर किसी का कोई नुक्ता नजर है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू देने में कोई वो नहीं है। लेकिन ये कहना कि आपके फॉरेन मिनिस्टर की टांगे कांप रही थी और डर गए थे, इंडिया अटैक कर सकता था और हमने बड़ा कमजोरी का मुजाहिरा किया वापस करके, इस हद तक ना ले जाए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये राइट टाइम है कि हमें इंडिया को इस मौके पे एक और मौका देना चाहिए पीस का? इस पे आप करें, अपना ओपिनियन दें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से तमाम हर किसी को एक स्टेप पीछे लेने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। आप ठीक कह रही हैं, चाहे वो नवाज शरीफ को गद्दार कहना हो या किसी और को गद्दार कहना हो और ये कहना हो कि इंडिया के एजेंडे पे चल के ये काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ का ओपिनियन है, गलत हो सकता है, आप उस पर बात कीजिए। ये जरूरी है कि हमने उसके क्रेडिट इंडिया को देना है कि इंडिया के कहने पे हो रहा है। हाँ। और आज जो प्रेशर थी उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीजीआई ISPR ने इस चीज की निशानदेही की है कि मुसल्ला अफवाज की जो लीडरशिप है उसको और रैंक एंड फाइल को अलग अलग करके ना देखें। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। और आई एम श्योर ये तो आपको पता है कि नवाज शरीफ से ही वाहिद वो शख्स हैं जो कि अपनी तकारीर में नाम लेके निशानदेही कर रहे हैं, तो उसको भी आज रिस्पॉन्ड किया है डीजीआई ISPR ने। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा पीछे हटके ये सोचने की जरूरत है कि हम इस मुल्क में ये जो सियासी नैरेटिव है इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं। नया नहीं है, ये चीजें हो चुकी हैं। बदकिस्मती की बात ये कि हम इससे सीख नहीं रहे। इंडियन मीडिया जो करता है, रीमा ठीक बात कर रही है कि उस पर बेस करके हमें अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए मीडिया को आप इतना कमजोर भी ना लें, और खासतौर पे इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में देखा जाता है वो लॉबिंग के लिए काम आता है। लोग उस मीडिया के नैरेटिव पे अपना जहन बनाते हैं। हर कोई बैठ के यहाँ पाकिस्तान के चैनल्स तो नहीं देख रहे होते। इंडिया इज अ बिगर कंट्री, मीडिया उनका ज्यादा फैला हुआ है, इंग्लिश चैनल्स उनके ज्यादा हैं, तो जब वो इस तरह की हेडलाइंस चलाते हैं कहीं ना कहीं उसका असर जरूर होता है। इसीलिए हमें ये ख्याल करने की जरूरत है कि हमारे जो सियासतदान है वो बाहर क्या नैरेटिव बेच रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ये कह दें कि इट डज नॉट मैटर कि मीडिया क्या कर रहा है, तो हम भी यहाँ बैठ के मीडिया पे क्यों बात कर रहे हैं? मैं इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना चाहती हूँ शहजाद साहब। एक हम जनरलाइज सिचुएशन की बात करें, यकीनन हम तमाम सियासी जमातों को उनका किरदार याद दिला रहे हैं, लेकिन खुसूसन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से इस दफ़ा काफ़ी जारहाना रवैया, पहले नवाज शरीफ साहब की तकारीर होती हैं, फिर या के बाद दीगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है? मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी देखिए, मेरे ख्याल से अब जिस लेवल पर नवाज शरीफ साहब ये मामलात लेके जा रहे हैं, ये बात तो क्लियर है कि वो अब चाहते हैं कि
ये जो मामला हुकूमत का है ये इस तरह ना चले, उनके जहन में बेशक ये बात हो कि हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है। पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जो भी इक़्तिदार में होता है उसका ये एक इशू होता है कि इक़्तिदार किसके पास होगा, पावर्स किसके पास होंगे। ये जंग पाकिस्तान में इख्तियारात की हमेशा से रही है। और मेरे ख्याल से अब नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने सबरान के नाम लेना शुरू कर दिए तो जिस लेवल पर हम इसको लेके जा रहे हैं वहाँ मुझे तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि अगर हम कोई प्रैक्टिकली बैठ के बातचीत करना भी चाहते हैं तो वो कैसे होगी, क्योंकि यही इदारे के सरबराह हैं जिनसे बैठ के आप बात करना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ शायद खाकान साहब अब्बासी साहब इशारा देते रहते हैं। वो कैसे मुमकिन होगा, कैसे वो डायलॉग होगा, वो समझ नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से सबको यहाँ से तहम्मुल से बैठ के एक सोचने की जरूरत है और पीछे एक कदम हटने की जरूरत है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब क्या समझते हैं ये जो सीरीज ऑफ इवेंट हुई है इसके बाद जो डायलॉग की हम बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, उसकी गुंजाइश बचती है? बिल्कुल बचती है। ये आखिरी हरबा, आखिरी जो होता है वो डायलॉग ही होता है। और जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की, जैसे राना सना ने बात की, ये डायलॉग बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये आप देखें, बात ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, 7 सितंबर के बाद अचानक कोई क्या तूफान आ गया कि आप अचानक ये हो गए। आपकी जो बातें हैं उनको क्या ले रहे हैं? जो आपके पीडीएम के 3 जलसे थे वो थे हुकूमत के खिलाफ के ये इंतखाबात नहीं ठीक, ये जाली इंतखाबात हैं वगैरह वगैरह, ये 26 नुकात हैं, इन पे होना चाहिए। लेकिन उसको इंडिया में क्या लिया गया? एंटी आर्मी रैलीज। और जब ये कराची का वाकया हुआ तो क्या इंडिया मीडिया में आया कि सिविल वार हो रही है पाकिस्तान में। इमरान खान ने कौमी तिराने लगा दिए हैं रेडियो पाकिस्तान पर। सिंधु देश बनने जा रहा है, बलूचिस्तान अलहदा होने जा रहा है, आर्मी और पुलिस आपस में झगड़ पड़ी, 5 उधर के मर गए, 10 उधर के मर गए, लोग सड़कों पर आ गए। तो ये बात। तीसरी बात ये है कि ये आप ये नवाज शरीफ साहब का ये मेथड बिहाइंड द मैडनेस ये क्या है? यानी आप क्या करना चाहते हैं? पाक फौज बहुत अच्छी फौज है, 2 ऊपर जो बैठे हुए हैं वो बड़े बुरे हैं। ये किसको आप सुना रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? क्यों खुश कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं जी? क्या हो गया है? यही वो साहब थे जिनको आपने वोट दिया था, यही वो साहब थे जिनको आपने आर्मी चीफ बनाया, अपॉइंट किया था, यही वो साहब थे जो चंद दिन पहले तक सारा कोई ठीक था। क्या इसका क्या गलत हो गया है? और फिर दूसरी बात, तहरीक इंसाफ ने बहुत गलत किया हो गया, हम उस पर बात करते रहते हैं। क्या उसने जो गलत किया उसके बाद इनको भी गलत करना चाहिए? अब जब इन्होंने गलत किया तो इसके बाद तहरीक इंसाफ को भी गलत करना चाहिए। फिर ये अभिनंदन कहां से आ गया? कहां से? कल कौन सा अभिनंदन सेशन शुरू था? कल कोई पोस्टमार्टम हो रहा था कि अभिनंदन का? कल क्या करना चाहते हैं? यानी आप क्यों करना चाहते हैं? फौज मुजरम है क्यों कहना चाहते हैं? CPAC बुरा है क्यों कहते हैं आप? उर्दू जबान बुरी है क्यों कहते हैं आप? अफगान बॉर्डर बाढ़ उखाड़ कर फेंक देंगे क्यों कहते हैं आप? मज़ार कैद पर जूतों से क्यों चढ़ाई करते हैं? ठीक है। कलभूषण को NRO क्यों किसने दिया? NRO सारे आपके सवाल कश्मीर करने वाला कौन है? क्यों कहते हैं आप ऐसा? ये मैं फिर भी नहीं कहता आप गद्दार हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं, मगर आप मुल्क इस पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान से वफा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के फायदे में है सब कुछ। ठीक है, हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, ऑपोजिशन जो मुद्दा है, क्या वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है? कहना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और रहा है, और इसके इम्पैक्ट क्या होगा? एक ब्रेक के बाद जानेंगे अपने एनालिस्ट से। जनाब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कौमी असम्बली में जो बहस हुई कुलभूषण अभिनंदन के मामले के ऊपर, बयानात दिए गए और उसके बाद TGI-SPR को वजाहत देना पड़ी उस सारे मामले के ऊपर। न्यायी साहब, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जब इस तरह के बयानात आते हैं अपोजिशन की तरफ से, सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं वो, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब नाम लेते हैं और मुतनाज़ बना देते हैं, बयानात देते हैं, फिर अयाज सादिक साहब का ये बयान और उससे पहले भी एक चेन, तो सवालात तो उठेंगे। क्या आपको लगता है उसके बाद कहीं गुंजाइश रहती है कि बैठकर बात होगी, या सिविलियन बालादस्ती की अगर आपने बात करनी दीगर तरीके और इशू उठाने के दीगर भी बयानिए भी मौजूद हैं? अब मुझे समझ नहीं आती जी कि ये पाकिस्तान में क्या बात हो सकती है, किस तरह बात हो सकती है, और अगर मेरे को ग्रीवेंसेज हैं किसी के खिलाफ और वो जेन्युइन फर्ज के हैं मेरे नज़दीक, तो उसको मैं कैसे पेश कर सकता हूँ? अब आप नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक वजाहती अंदाज में कहा, और एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा पहले ये वजाहत दी
کہ میں پوری پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں، باقاعدہ انہوں نے مظاہرہ کیا، میں رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں کو گالی نہیں دی، گالی تو عمران خان دیتا رہا. یہ کئی دفعہ کلپس چل بھی چکے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت ہے، مجاب ہوتا ہے یہ چلو ٹائم ہوگا. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے جان بوجھ کے حقائق سے آنکھ چرانا چاہتے ہیں. یہ اس کے اندر ہم نے گورنمنٹ کو بھی ڈکیت دی ہے، اپوزیشن کو ڈکیت دی. ہم یہ نہیں دیکھتے پاکستان کے اندر ایک ٹرائنگل ہے، ایک مسلسل ہے، اور 3 چیزیں یہاں ایکٹیو ہیں. یہ راجیو گاندھی جب آیا تھا، بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی، اور ہم نے اس کو بے نظیر کو جو ہے غدار کا جو سمبل دیا تھا. اور جب جے آئی ٹی بنی تھی تو جے آئی ٹی تو سیاستدانوں نے بنائی تھی. آئی ٹی آئی تو سیاستدانوں نے بنائی تھی. کچھ اور ہے، مدعا کچھ اور ہے، چاہتے ہم کچھ اور ہیں، لیکن معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. اب بات دیکھو، بات اس کو کرنے دو کہ سب سے خطرناک یہ چیز ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اگر وہ کام غیر قانونی ہے تو کرے نہیں، اگر قانونی ہے تو شرمائے نہیں، پھر بتا دیں ہم کر رہے ہیں. بھائی چھپنے میں کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، چھپ چھپ آئیں بھرنا کیا. اب کیوں ڈرتے کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہو اور ایک عرصے سے کر رہے ہو. ہم نے آئی جی آئی بنائی 1988 میں، نواز شریف نے تو نہیں بنائی تھی. وہ نواز شریف نے تو سارے کام جو ایک منڈک جیکل آپریشن نواز شریف نے تو نہیں کیا تھا. اب آپ کیوں منافقت کرتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، اپنا اخلاق خراب کر رہے ہو، اپنے آپ کو دوگلا پن دکھا رہے ہو. ایک بندہ شکایت کر رہا ہے، اس کی شکایت غلط ہے بتا دو، جھوٹ بول رہا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور سارے مان رہے ہیں. ایک دفعہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا چند ہفتے پہلے، 10 دن پہلے، کہ ہم سیاست میں دخل نہیں دیتے. اگلے دن یہ جو ہے فرمائشی جو ان کے ہیں ترجمان ہیں سیاست میں اور میڈیا میں، انہوں نے بتایا کہ یہ کل تو جو فلاں ملا تھا، پرسوں فلاں ملا تھا. آئی ایس پی آر کو پھر کہنا پڑا کہ آپ اس پہ تباہ آزمائی بند کریں. شیخ رشید صاحب بتا رہے تھے فلاں دن مل گیا، فلاں دن مل گیا. پھر جو شروعی ملاقاتوں کی کہ کیا ملاقاتیں ہیں، دونوں باتیں کیا ہوئی، ہر بندہ اپنی ملاقاتوں کی تفصیل بتا رہا ہے. تو یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں تو آپ مانتے ہو، شرماتے ہو. اصل کرائسس یہ کہ اس منافقت میں آپ پڑے رہیں اور پاکستان جسے جا رہے جانے دیں، اور اس کے بعد دیکھتے رہیں. یہ ہم 1974 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم پاکستان ٹوٹتے نہیں دیکھ چکے. حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہے تو اس کا مطلب پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو. ہم نے کس کو نہیں سیکیورٹی رسک 88 کے بے نظیر کو کہا، اس وقت تو ایاز صادق نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہے تینوں کرداروں کو جو سیاست میں ہے، حکومت، اپوزیشن، جب کی بھی اپوزیشن ہے اور جب کی اپوزیشن ہے، اور جو تیسرا کردار ہے جو ہمیشہ میں نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، اور جس کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے میڈیا جیسے کنٹرول میں ہوتا ہے ہمیشہ، یہ سارے بیٹھ کے ایک دفعہ حقائق سامنے رکھ دیں، ٹروتھ کریں، پہلے سچ بولیں. ریکنسیلیشن ہوتی رہے گی نارو، پہلے ٹروتھ بولیں کہ کیا سچ کیا ہے. سچ سے ہم سارے شرماتے ہیں. اب کیا کیا جائے. اچھا ریما کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہے، چھوٹا سا وضاحتی. میرے پاس پروگرام میں سوری ٹائم بڑا کم رہ گیا. جی جلدی سے ریما. علینا میں میڈیا کے رول کی بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ شہزاد صاحب نے اس کو ریز کیا. پہلی بات تو یہ کہ بھارتی جو میڈیا ہے دنیا میں ایک جو ایکسیپشنز کے ہیں لیکن دنیا میں ان کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. دوسری بات یہ کہ جو بھٹی صاحب نے اگزامپل دی، اب گلگت بلتستان میں کیا پروٹیسٹ کرنا بند کر دیں لوگ اپنے حقوق کے لیے کیونکہ بھارتی میڈیا کس طرح اس کو کور کرے گا؟ یا کراچی میں جو واقعہ ہوا، کیا سندھ پولیس کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا؟ عمران نے 2014 کے دھرنے میں کیا تھا بھارتی میڈیا نے. نہیں تو علینا یہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ اپنے پرائیورٹیز، اپنے مقاصد کے لیے پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو ٹویسٹ کرے گا. ہم لوگ اپنے آپ کو سینسر نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی کاشسلی بات کریں، بھارتی میڈیا کس طرح اس کو پک اپ کرے گا. ہمیں بہت وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو سینسر کرتے ہیں. بھارتی میڈیا کیا کہے گا اس پہ اپنے آپ کو کس طرح اپنی آرگیومنٹ فریم کرنی ہے یا اپنے آپ کو سینسر کرنا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہماری وجوہات، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مقصد تھا. میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. میں صرف اس کے اندر یہ بات کہوں گی کہ میرے اپنے کئی جو بھارتی میڈیا میں دوست صحافی بھی ہیں، جب پرائیویٹلی آپ ان سے بات کریں تو وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اس طریقے کی یہ جو مذاق بنا لیا ہے انہوں نے میڈیا کے اندر، اور توڑ مروڑ کے چیزیں جس قسم کا پروپیگنڈا ادھر ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر وہ خود بھی کرٹیسائز کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہ بھارتی میڈیا کے میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں کہ نا اب یہ کچھ مجبوریاں بھی ان کی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ادھر بھی مودی گورنمنٹ ایک فیشسٹ حکومت ہے تو ان کی بھی کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے اور کچھ ان کا بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. ابھی جن ٹویٹس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ جب پلوامہ کے بعد ہم نے ابھینندن واپس کیا تو ان کے میڈیا نے بہت زیادہ پذیرائی کی. آج بی جے پی کے ماؤتھ پیس ایک ہے، ان کے ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے ان ساروں کے جو ہے نا ان کے خلاف وہ پیس کیا ہوا کہ انہوں نے تو اس وقت پاکستان کی. شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئکلی؟
نہیں मैंने जब अपनी बात शुरू की थी मीडिया पे तो मैंने यही कहा था कि हम बेसिकली अपना आर्गुमेंट फ्रेम बेसिक ना करें उनको देखकर, बट ये कह देना कि फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से जब उनका मीडिया, अब रीमा का अपनी ओपिनियन होगी, वो कह रही है कि ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मीडिया का एक रोल तो है ना, दुनिया भर में सुना जाता है, चीजों का इम्पैक्ट है, अगर नहीं है तो फिर कंजम्पशन। जी हाँ सही है, ये बात ठीक है, लोकल कंजम्पशन के लिए ज्यादा है, ठीक है, अग्री, ठीक है जी। अपनी डिबेट को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। गो के हमारा पैनल डिवाइडेड है। नियाजी साहब कह रहे हैं जो वजाहत आ गई है वो काफ़ी है और इसके ऊपर मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा पैनल इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन एक बात है जो सब ने मुश्तरक कही है वो ये है कि हमारे सियासतदानों को ये लाइन, ये डिवाइड बड़ी वाज़ेह करनी होगी कि कौमी सलामती के मामला और सियासी मामलात इनको अलग अलग किया जाए और इसमें डिफरेंस जाना जाए। तो आपसे कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अब तक बहुत ख्याल रखिए।